Assalamu alaikum dear students. My name is Khurram Dad and I am your resource person for the subject of English 1 for the next 6 days every day at this time. For the period of 2 hours I will teach you this book. This book has been divided into 9 units and each unit has 5 sections. Every section has a unique function कि हर एक section जो है उसका एक अपना function है, ठीक है. Number 1 पे जो है it is function. The first section of each unit is related to function of the language, that the way we use language in our daily use, like we ask questions from people, we seek information, we seek confirmation, we agree with people, we disagree with people, and obviously there are many more functions of language. The second section of each unit is structure. By structure we mean grammar, so you will be learning tenses in this unit. The third section of each unit is related to reading. It aims to improve your reading efficiency. The fourth section of each unit is related to writing. That is that it will help you improve your writing. And the fifth section of each unit is concerned with listening, that how do you listen to English language and how can you better understand it by listening. Okay, now I am moving on to unit number 1 of your book. This is unit number 1 of your book. If you have book, you can open your books. If you do not have your books, you can download the books from website of Allama Iqbal Open University. The books are available free of cost for students. You can download it, but I am sure you may have received your books. If not, then you can download, and if you are unable to download, you can just go on reading from your screen, because the screen has been shared with you and you can see what I see. Okay, now let us move to unit number 1. The first section is function, and the function is asking and answering question, that how do we ask and how do we answer questions in English language. So we have been given a situation. हमें एक सिचुएशन दी गई है जिसमें पुलिस ऑफिसर ने जो है वो एक यंग मोटरसाइकिलिस्ट को रोका है, और देयर इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन देम. यू मे हैव रिसीव्ड योर रिकॉर्डेड कैसेट्स. इफ नॉट, देन देयर इज़ अ डायलॉग written here. So you can see that there are different ways in which you can ask questions. Okay, may I know your name, sir? Please, sir. That is one way of asking question. And your address, again another way of asking question. Okay, and again he asks how old are you. There is the word how, that is a question word. Then after that, have you got your driving license, sir? Have का word आया है शुरू में, तो it means that again it is a question. Then certainly, sir. What make is this car? So what is the question word? Can का word जो है, it is a question word. Again we have what. How long have you been driving? How का word जो है question word है. Have you ever been stopped by police before? तो ये सब जो है ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं. अब उन्हीं क्वेश्चंस को नीचे जो है वो दोबारा लिखा गया है. तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछने के, सवालात पूछने के बेतहाशा अंदाज हो सकते हैं. ठीक है, आपके सामने चंद एक एग्जांपल्स लिखी गई हैं. तो जो इंग्लिश में सबसे जो मतलब कॉमन मेथड है क्वेश्चंस पूछने का, वो आपको पता है कि WH वाले जो वर्ड्स होते हैं, वी यूज़ दीज वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, 5 जो है वो WH वाले वर्ड्स हैं, जिसमें when, where, why, what और
विच, हुज, हुम, ठीक है, हु, ये सारे वर्ड्स जो हैं WH वाले वर्ड्स हैं और इनको जो है वो हम क्वेश्चंस पूछने के लिए वी यूज देम। हाउ का वर्ड जो है इसको भी इसी कैटेगरी में शामिल किया जाता है, लेकिन ये WH से इसका आगाज़ नहीं होता। व्हेन का जो वर्ड है, व्हेन के वर्ड को वी यूज़ टू आस्क अबाउट टाइम, कि हम वक्त जो है, वक्त के बारे में जब कोई क्वेश्चन करते हैं कि आप किस वक्त उधर गए थे, आप किस दिन गए थे, तो हम व्हेन का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। वी यूज़ द वर्ड वेयर टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट प्लेस, जगह के हवाले से जब हमने क्वेश्चन करना होता है कि वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ पर रहते हैं, वेयर इज़ योर स्कूल, वेयर इज़ योर रेजिडेंस। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वेयर से जो जिनका आगाज़ होता है, ये हमें एक ख़ास जगह के बारे में हमसे पूछा जाता है। उसके बाद है वाई का वर्ड। वाई का जो वर्ड है ये रीज़न पूछने के लिए, वजह पूछने के लिए जो है कि वाई डिड यू गो टू पेशावर, ठीक है, वाई डिड यू बाय दिस बुक, कि आपने ये किताब क्यों ख़रीदी, इसकी वजह क्या है। तो किसी भी चीज़ का जो रीज़न है वो रीज़न पूछने के लिए हम वाई का वर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद व्हाट का वर्ड यूज़ आता है, ये किसी ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन को पूछने के बारे में यूज़ किया जाता है कि व्हाट डिड दे बाय फ्रॉम पेशावर, कि उन्होंने पेशावर से क्या चीज़ ख़रीदी, ठीक है। विच, विच जो है इट इज़ आस्क्ड टू अबाउट द चॉइस, कि आपकी क्या चॉइस है, आपको कौन सी चीज़ पसंद है। इस किस्म का जब हमने क्वेश्चन पूछना होता है कि ढेर सारी चीज़ों में से आपने कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है, या दो चीज़ों के बीच में से आपने कोई चीज़ जो है उनको सिलेक्ट करनी है, तो यू यूज़ वर्ड विच। देन देयर इज़ वर्ड हुज, हुज इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से whose mobile phone is this. Then there is word whom. Whom is used to ask question about people. Whom did you meet? Whom did you give my mobile phone, कि आपने मेरा मोबाइल किस बंदे को दिया, ठीक है, whom. Then there is word who. Who is again asked used to ask question about people. Who is your friend? Who are you meeting today, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। देन देयर इज़ दिस वर्ड हाउ। हाउ का वर्ड जो है ये किसी चीज़ का मैनर पूछने के लिए होता है, ठीक है, कि आपने किस तरीके से इस चीज़ को या इस एक्शन को जो है वो सर अंजाम दिया है, ठीक है। देन देयर इज़ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट्स योर नेम, कैन यू स्पेल योर नेम। कैन जो होते हैं मॉडल वर्ब्स होते हैं, इनको भी हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, ठीक है। So it is not a difficult topic. You have already learned a lot about question words, and you already know about generating questions. So I think I need not go into that much detail related to this. Then there is this exercise number 1. You have been given a paragraph to read, and then you have to match the questions with their answers. Okay, what is her name, ठीक है, that is the first question. So obviously the answer is her name is Salma. Where does she live? So we are looking for the name of the city. Where does she live? She lives in Peshawar, ठीक है। Again, so has she finished college? Again we have to look for the answer here. Yes she has, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने आंसर्स के साथ मैच करना है। What does her father do? तो we can assume that B is the answer, that he is an engineer. ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपने मैच करने हैं आंसर्स के साथ। It is an easy task. Then you have to write questions using WH words, okay। तो आंसर दिया गया है तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चन। तो इफ़ यू विश टू आस्क क्वेश्चन तो वी कैन से व्हाट इज़ हर नेम या व्हाट इज़ योर नेम हम पूछ सकते हैं।
दूसरा आंसर है हमारे पास इन पेशावर, तो हम कह सकते हैं वेयर डू यू लिव, तो यू कैन आंसर दैट आई लिव इन पेशावर, ठीक है। तो आगे आंसर है 20, तो वी कैन आस्क क्वेश्चन कि व्हाट इज़ योर एज, ओके। सो इन ऑन दिस पैटर्न वी कैन complete this exercise, and once you complete this exercise you will learn something that you will be able to generate questions on your own. what does he do यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपके अब ये जैसे है क्वेश्चन यस 3 brothers, तो इसमें अगर हम क्वेश्चन जनरेट करना चाहें तो ये होगा डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, कि क्या आपके कोई बहन भाई हैं, तो यू कैन आंसर यस आई हैव 3 brothers, ये यस 3 brothers will suffice, okay. In this unit we will look closely at 8 different ways of asking questions in English, कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछने के 8 जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनको आपके साथ जो है वो डिस्कस किया जाएगा। जो सबसे कॉमन मेथड होता है इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने का वो होता है आप जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को रिवर्स करके क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर इंग्लिश, तो इफ़ वी विश टू कन्वर्ट दिस इनटू क्वेश्चन वी कैन से आर दे इंग्लिश। तो जब हम आर दे इंग्लिश लिखेंगे तो ये जो है स्टेटमेंट की जगह पे हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ऐसी दूसरी स्टेटमेंट है अंजुम वाज हेयर, तो हम वाज जो है वर्ब उसको शुरू में लेकर आ जाएंगे, वाज अंजुम हेयर, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसी पैटर्न पे बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं देवर एट होम, वर दे एट होम, सलमा वाज द बेस्ट स्टूडेंट, वाज सलीमा द बेस्ट स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, एम आई फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। ये एक टाइप की क्वेश्चंस हैं। दूसरी जो टाइप है क्वेश्चंस की वो है जी हैज़ का, और ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं इनका यूज़ करके क्वेश्चन बनाना कि शी हैज़ फिनिश्ड द स्कूल, हैज़ शी फिनिश्ड द स्कूल, दे कैन कम टुमारो, कैन दे कम टुमारो। तो इस टाइप के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं या ऑक्सिलरीज जो होते हैं, मॉडल भी हम इनको कहते हैं, इनको मूव करते हैं हम शुरू में and we make the question out of it. She will come to Karachi, will she come to Karachi, she has bought a new car, has she bought a new car, they will go for Hajj this year, will they go for Hajj this year. Then there are third type of question where we use the verb be की forms जो होती हैं, to be जो verb है उसकी form जिसमें do, does, did आता है, ठीक है। इनको हम यूज़ करके तो हम क्वेश्चन बनाते हैं कि ही लाइक्स कॉफ़ी, डज ही लाइक कॉफ़ी, तो इसमें डू, डज और डिड का यूज़ जो है वो आपको आना चाहिए। डिड जो है उसको पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन हो, उसके साथ डिड ही यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ तक डू और डज का ताल्लुक़ है तो सिंगुलर जो है उसके साथ और प्लूरल के साथ आप उस हिसाब से डू और डज जो है उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ही वेंट टू सियालकोट, डिड ही गो टू सियालकोट, चूँकि डिड का वर्ड आ गया तो हम जो है वो वेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि डिड के अंदर पास्ट टेंस ऑलरेडी मौजूद है। दे नीड अ कार, डू दे नीड अ कार, तो प्लूरल जो होते हैं उनके साथ डू का यूज़ होता है और जो सिंगुलर्स हैं उनके साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। यू जो है वो एक एक्सेप्शन है, यू के साथ जो है डू का ही यूज़ होता है और आई के साथ भी डू का यूज़ होता है। आफ्टर दैट यू हैव एक्सरसाइज, देन यू हैव टू फॉर्म क्वेश्चंस। सो आंसर्स आपको दिए गए हैं, यू हैव टू फॉर्म क्वेश्चंस। आई एंजॉयड दैट फिल्म, तो एंजॉयड है तो ऑब्वियसली पास्ट टेंस है तो यहाँ पर क्या लगेगा, डिड का इसमें यूज़ होगा। तो वी विल आस्क द क्वेश्चन कि डिड आई एंजॉय दैट फिल्म, ठीक है।
तो इसी पैटर्न पे जो है वो बाकी भी क्वेश्चंस आप बनाएंगे. आई लाइक दिस म्यूज़िक, डू आई लाइक दिस म्यूज़िक. ठीक है, तो दिस पैटर्न विल बी यूज्ड टू जनरेट क्वेश्चंस. रोही वांट्स टू कम, तो विल से डज रोही वांट टू कम. फहद एट ऑल द केक, डिड फहद ईट ऑल द केक. ठीक है, तो इस पैटर्न पे हम ये सारे क्वेश्चंस बनाएंगे. You are helping a woman fill in visa application form. She does not understand the questions. You must make questions easier for her by repeating them in different ways. Home address. What is your home address? Where do you live? Name in full. What is your name? ये जो है वो questions हैं, आपने इसको छोड़ दें. इट इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज. ये आपके लेवल से छोटे लेवल की एक्सरसाइज है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है. स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, स्टेटमेंट्स को आपने क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है. शी हैज़ गॉट 3 ब्रदर्स, तो हैज़ शी गॉट एनी ब्रदर्स. 2 एग्जांपल्स आपको दी गई हैं. शी हैज़ 3 ब्रदर्स. डज शी हैव एनी ब्रदर? हैज़ शी गॉट एनी ब्रदर्स? In the first sentence, has is not an auxiliary verb, it's the main verb of the sentence. There is no auxiliary verb in the sentence. Therefore, the question uses do, does, or did. This is like a type 3 question. ठीक है, तो ये सारी टाइप्स हैं क्वेश्चंस बनाने की. मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी इजी. वी डू नॉट नीड टू वेस्ट दैट मच टाइम ऑन दिस. ठीक है, अगेन एक्सरसाइज है, इसको आपने सॉल्व करना है. ठीक है, उसी पैटर्न पे आपने क्वेश्चन बनाने हैं कि बस इट इज़ easy. We don't need to waste our time on this thing. ठीक है, let us move on to next question type 5. 5वीं टाइप का क्वेश्चन जिसमें WH वर्ड्स का जो है वो यूज़ किया जाता है कि Zahid ate all the cake. Who ate all the cake? Who rang me last night? Who repaired the car? Who visited you? कि जिसमें who का जो है या WH वर्ड्स जो होते हैं उनका यूज़ करना है आपने. ठीक है, अगेन जो है जो छठी टाइप है क्वेश्चंस की. ठीक है, वो भी स्टेटमेंट आपको दी गई है. आपने WH वर्ड जो है उसमें इनको जो है वो कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट्स को. द हैवी रेन्स डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स. व्हाट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स? व्हाट वोक मी अप? वट फेल ऑन द कार. ठीक है, तो यहाँ पे उसमें हु का यूज़ था, इसमें जो है वो वट का यूज़ है. जी, उसके बाद जियो न्यूज़ का एक प्रोग्राम हुआ करता था जियो टीवी का, जॉर्ज का पाकिस्तान. ठीक है, तो उसमें जॉर्ज जो कि हु इज़ एन इंग्लिश मैन, और वो एक होटल में है कराची में, और जो वेटर है वो जॉर्ज से डिफरेंट क्वेश्चन पूछने की मतलब कोशिश करता है. और उसके जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ इश्यूज हैं, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं. एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू करेक्ट दीज मिस्टेक्स. तो पहला क्वेश्चन है वेयर यू फ्रॉम, तो वी कैन से वेयर आर यू फ्रॉम. ठीक है, व्हेन यू अराइव हेयर, तो we can say when did you arrive here. How long you stay in Karachi? How long are you staying 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 in Karachi. इसी पैटर्न पे जो बाकी मिस्टेक्स हैं उनको आपने चेक करना है, so that you will learn how to make right questions. You like Karachi? Do you like Karachi? You've been here before. Have you been here before? How many times you've been here? How many times have you been? Yeah, you have been here. You fly from London. Did you fly from London? You businessman. Are you a businessman? You married. Are you married? How many family members you got? How many family members do you have? ठीक है, तो you have no brothers, sisters. Do you have any siblings? अगर हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो हम पूछेंगे डोंट यू या डू नॉट यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स. ठीक है, क्वेश्चन टाइप 7 है जी. नंबर 120 बस गोज द विच बस.
तो इसमें विच और whose मतलब कि WH वर्ड्स जो हैं उनका अगेन इस्तेमाल है, ये इजी है। अंजुम सन won first prize, whose son won first prize। या फिर दो तरीकाकार हो सकते हैं इसको पूछने के, who won the first prize या whose son won first prize। ठीक, एग्जाम्पल्स हैं। 8वां क्वेश्चन, अगेन WH वर्ड्स का इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये मतलब कि इजी है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 2 ऑफ दिस बुक, दैट इज स्ट्रक्चर। जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस या और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उनका इस्तेमाल। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट और कंडीशन दैट इज़ अकरिंग इन द प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। एक ऐसा एक्शन कि जो कि जब हम गुफ्तगू को मतलब कर रहे हैं उस दौरान वाक़या हो रहा है, या फिर एक ऐसा एक्शन जो कि एक यूनिवर्सल रियलिटी है, जो कि एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत कि जिससे दुनिया का कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, कि सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है, तो पूरी दुनिया में सूरज जो है वो मशरिक़ से ही निकलता है। ठीक है। द सन सेट्स इन दी वेस्ट, के सूरज जो है वो मगरिब में ग़ुरूब होता है। ठीक है, तो इस किस्म के जो एक्शंस होते हैं या इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, प्रेजेंट टेंस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइटेड वर्ब्स, इसके बाद वर्ब है कि जनाब हम जो है प्रेजेंट टेंस है इसको स्ट्रक्चर इसका हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बड़ा सादा सा स्ट्रक्चर होता है इसका कि वर्ब जो है उसको हम रीड करते हैं और वर्ब के साथ अकॉर्डिंगली हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर मिसालें लिखी हैं। द वाइफ वेट्स, कि वाइफ जो है वो इंतज़ार करती है। द शेल्फ होल्ड्स 3 बुक्स। ठीक है, द क्राउड मूव्स अक्रॉस। बोथ सिस्टर्स आर वेरी टैलेंटेड। रोमाना राइट्स एंड नोमाना पेंट्स। ठीक है, तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होता है जहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, जहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास इसमें प्लूरल आ जाता है। ठीक है, तो उसमें जो है वो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जनरल ट्रूथ्स या यूनिवर्सल ट्रूथ्स या साइंटिफिक फैक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको भी बयान करने के लिए इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रेक्टेंगल्स हैव 4 साइड्स। ठीक है, पाकिस्तान डे टेक्स प्लेस ऑन 23rd of March। द मून सर्कल्स द अर्थ वंस एवरी 28 days। ठीक है, इसके अलावा थर्ड जो यूज़ है प्रेजेंट टेंस का, इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ हैबिचुअल एक्शन, कि जो आपकी आदत होती है कि माई सन ब्रशेस हिज टीथ एवरी मॉर्निंग, कि हर रोज़ जो है वो मेरा बेटा अपने दांत ब्रश करता है। ठीक है, माई फादर गोज़ टू प्ले टेनिस, कि हर रोज़ अब्बा जी जो हैं वो टेनिस खेलने जाते हैं। माई ग्रैंड मदर सेंड्स मी न्यू क्लोथ्स ईच स्प्रिंग, के हर स्प्रिंग यानी कि बहार के महीने में जो दादी अम्मा हैं वो मुझे नए कपड़े भेजती हैं। ठीक है, while simple present tense and present continuous tenses are sometimes used interchangeably, the present continuous or progressive tense emphasizes the continuing nature of an act, event or condition। कि present continuous tense जो होता है उसका इस्तेमाल होता है एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि जारी है, जो कि कंटिन्यू है, जो कि रुका नहीं है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल नुमान इज़ लुकिंग for the paperback edition of all Harry Potter books। Dolly is dusting all her bookshelves। The agitating factory workers are gathering in front of the factory। are gathering, ठीक है, तो इसमें जो है वो helping verb is am are का यूज़ होता है, और जो वर्ब है जैसे look एक वर्ब है, देखना एक्शन वर्ड है। ठीक है, उसके साथ हम ing का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे आपका कंटिन्यूस टेंस जो है वो बन जाता है। जैसे FM 100 is broadcasting the hits of 60s and 70s this evening। ठीक है, तो ये इनका
स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है कि आई के बाद अगर आई जो है वो जुमले का सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपने वर्ब की सिंपल फॉर्म लगानी है जिसमें एस और एस का इजाफा नहीं करना। इसी तरह यू या दे जितने भी प्लूरल्स हैं उनके साथ आपने सिंगल फॉर्म लगानी है, ठीक है। ही शी इट जो है उसमें आपने वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का इजाफा करना है, तब जाके आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। और इसके बाद है हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो आपने कैसे बनाना है। ये चंद एग्जांपल्स हैं ई एस वाले, मतलब कि जो वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ई एस लगता है। जैसे पास है तो उसमें पी ए डबल एस ई एस हम लगाएंगे, या वर्ब डोज है जिसका मतलब ऊँगना होता है तो डी ओ जी ई एस, शी डोजेज, ठीक है। तो एस का इजाफा या ई एस का इजाफा उन्हीं वर्ब के साथ होगा जिनके साथ ये इजाफा होता है। कि सब्जेक्ट अगर आपका यू है, आई है, वी है या फिर दे है तो इसमें जो है वो ई एस का इजाफा नहीं होगा, ठीक है। और अगर ही, शी और इट आपका सब्जेक्ट है तो उसमें एस या फिर ई एस का इजाफा वर्ब को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आप वर्ब के साथ लगाएंगे, तब जाके जुमला आपका जो है वो सही होगा। आगे जो है वो एक्सरसाइज आपसे कही गई है फिल करने के लिए, ठीक है। तो आई वर्क, आई चूँकि जो है आई के साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं लगता, ठीक है, तो आई वर्क इन द बैंक। शी के साथ हम एस और ई एस का इजाफा लगाते हैं तो हमें पता है कि एल आई वी ई जो है इसके साथ ई एस नहीं लगता बल्कि खाली एस लगता है। शी लिव्स इन फैसलाबाद, ठीक है। ऐसे ही जो है वो नेक्स्ट आपने एक्टिविटीज़ सारी फिल करनी है। इट है तो इट के साथ भी हमें पता है कि जनाब एस या फिर ई एस वाला वर्ब होता है तो इट रेन्स। वी जो है हमें पता है कि जनाब इसके साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं होता तो वी फ्लाई टू क्वेटा एवरी समर, ठीक है। इसी पैटर्न पे ये बाकी सेंटेंसेस हैं उनको आपने फिल करना है। नेक्स्ट वी हैव पैराग्राफ कि जिसको आपने रीड अ स्मॉल पैसेज अबाउट अजमल एंड शगुफ्ता who work in the same office. Choose the correct form of verb, simple present tense verb that are given in the brackets. I and शगुफ्ता इसमें बिल्कुल वर्क ही आएगा क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं आपके पास बट वी आर कम्प्लीटली डिफरेंट। शी सिंगुलर वर्ब है तो लाइक्स आएगा। कॉफ़ी बट आई, अब आई आ गया है तो आई के साथ जो है वो सिंपल वर्ब लगता है। अगेन जो है वाश वाश ही रहेगा क्योंकि आई सब्जेक्ट है। शी नेवर, शी आ गया है तो शी के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा लगता है। शी अगेन है तो स्माइल्स होगा। ऑल द टाइम एट वर्क बट आई है तो आई फील मिजरेबल, आई कंप्लेन। शी है तो शी के साथ अगेन थिंग्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ब्स जो हैं आपको मैंने कुछ सॉल्व कर दिए हैं, बाकी जो रहते हैं यू शुड सॉल्व देम बाय योरसेल्फ, ठीक है। नाउ वी आर हेयर एट द एक्सरसाइज नंबर 16। ये एक्सरसाइज आपने अटेम्प्ट करनी है। चूज द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स एंड देन यूज देम इन इट्स एप्रोप्रिएट ब्लैंक स्पेस। प्लीज़ टेक 2 minutes and solve this exercise. I will be back in just a while, ठीक है। एक लम्हे में मैं वापस आऊँगा, आप इस एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करें, ठीक है बेटा।
ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जिसमें एक कंटिन्यूस एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में किसी पॉइंट पे शुरू हुआ था लेकिन अभी तक जो है वो जारी है, ठीक है। उसको डिस्क्राइब करने के लिए होता है कि, और एग्जांपल्स आपके सामने हैं। आई एम वॉचिंग टीवी, तो एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और वॉच वर्ब था, उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया गया है, तो ये कंटिन्यूस हो गया है। ही इज़ लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं आपके पास। स्ट्रक्चर अगर आप इसका देखें तो आपको ये सिर्फ अंदाज़ा लगाना है, बल्कि ये तो चीज़ें बेसिक हैं कि आपको पता है कि आई के साथ एम लगता है, यू के साथ जो है वो आर लगता है, ही शी इट जो होता है उसके साथ इज़ लगता है। ऐसे ही बाकी जितने प्लूरल्स हैं, वी हो गया, दे हो गया, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर लगता है। अब आगे वर्ब जो भी है उसके साथ आपने करना क्या होता है कि आपने आईएनजी का इजाफा करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अब सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट जुमले का वो वर्ड होता है जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही होती है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। तो जैसे आई सब्जेक्ट है, यू है, आई यू वी और दे जो है इनके साथ आई के साथ एम लगेगा, यू वी और दे के साथ आर लगेगा, ही शी इट जो है इनके साथ हेल्पिंग वर्ब इज होता है। जो मेन वर्ब है उसके साथ आपने आईएनजी लगा देना है, तो ऐसे आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म जो है वो बन जाएगी, ठीक है। जी, नाउ लेट अस लर्न व्हेन, ठीक है। प्रेजेंट का इस्तेमाल क्या होता है कि वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग नाउ। एक ऐसा काम जो कि अभी हो रहा है, कि अगर वक्त जो है वो ये है, ये जो लाइन यहाँ पे लगी है, ठीक है, तो ये कहीं इस वक्त से कहीं पहले ये एक्शन शुरू हुआ था और इस वक्त जारी है, और कहीं फ्यूचर में जाके किसी भी वक्त इसका इख्तिताम हो सकता है। इस टाइप के जो एक्शंस हैं उनको हम एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, जैसे कि अभी हमारा लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो दिस लेक्चर इज़ टू टीच यू इंग्लिश। तो सिंस यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो दैट सेंटेंस इज राइटली करेक्ट। आई एम सिटिंग, ऑब्वियसली आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ अपने लैपटॉप पे, एंड आई एम टीचिंग यू, सो आई एम सिटिंग, दैट इज़ आल्सो अ कंटिन्यूस एक्शन। आई sat on that chair about an hour ago, and I am sitting right now. I'm not standing there reading their books, they are not watching television, ठीक है। ये मतलब कि इसके अलावा जो है sometimes we use present continuous to say that we are in process of doing a longer action which is in progress, के लंबा एक्शन है, ठीक है। उसको एक्सप्रेस करने के लिए ये भी बेसिकली कंटिन्यूस ही होता है, ठीक है। एक ऐसा एक्शन जो कि जारी है। आई एम स्टडिंग टू बिकम अ डॉक्टर, आई एम रीडिंग द बुक गुलिवर ट्रेवल्स। गुलिवर ट्रेवल्स बहुत बड़ी बुक है, ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो रिक्वायर्ड होता है। बाज़ औक़ात जो है वो नियर फ्यूचर यानी कि एक ऐसा एक्शन जो कि अभी शुरू नहीं हुआ बल्कि होने वाला है, इन द नियर फ्यूचर, उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए बाज़ औक़ात हम जो है वो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई एम मीटिंग सम फ्रेंड्स आफ्टर वर्क, कि आज काम ख़त्म करने के बाद मैं चंद दोस्तों से मुलाकात करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, कि मैं आज रात पार्टी पे नहीं जा रहा। इज़ ही विजिटिंग हिज पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड, इज़न्ट ही कमिंग विद अस टुनाइट, कि क्या आज रात वो हमारे साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी इसके यूजेस हैं, ये इसका थर्ड यूज़ है, ठीक है। इसके अलावा एक एक्टिविटी ऐसी जो कि दैट हैपेंड इन पास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये तो मतलब कि पास्ट टेंस आ जाता है ना, ठीक है। ये तो आपका पास्ट जो है वो टेंस आ गया, ठीक है, कि हम इस वाज स्पीकिंग, इसमें चूँकि वाज का वर्ड आ गया, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस जब आप बनाते हैं तो उसमें वाज और वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और वही वर्ब जो है उसके साथ आईएनजी का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो ये आईएनजी फॉर्म है। आगे आ जाएं इसकी एक्सरसाइजेज पे।
इसमें आपने शी के बाद इज़ लगाएंगे, वियरिंग लगाएंगे और ईयरिंग्स आ जाएगा। इट इज़ रेनिंग टुडे, ठीक है। तो इनको आपने करेक्ट करना है इसी पैटर्न पे। राइट द सेंटेंसेस विद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। व्हाट इज़ ही डूइंग? ही इज़ reading a book. What are they doing? They are walking. What are they doing? They are having their breakfast. What is she doing? She is shopping, ठीक है, वो शॉपिंग कर रही है, ठीक है। What is he doing? He is cooking. वो बंदा क्या कर रहा है? मतलब कुकिंग कर रहा है। Again we have an activity that you have to fill. Which tense, simple, present or present continuous tense, will be suitable in the following sentences? Okay, यहाँ पर जो है वो simple. Right now Daniel is sleeping. They dash to some music on the radio. They are listening, ठीक है। Believe you in ghosts. Do you believe in ghosts होगा, ठीक है। Daniel, does this book belong to you होगा, ठीक है। तो ऐसे इसी पैटर्न पे you have to solve these exercises so that you may exhibit your learning of the simple present and present continuous tense. All the following sentences should be completed using simple present or the present continuous tense. You must use the words in the brackets to fill the blanks, ठीक है। Right now I am sitting. जी, तो इनका सलूशन भी साथ साथ दिया गया है, यू कैन रीड देम आउट, ठीक है। आगे हैं, इनका नहीं है सलूशन, ठीक है। तो बी क्वाइट, अबू स्लीप, अबू इज़ स्लीपिंग, ठीक है, इज़ स्लीपिंग, फुल स्टॉप आ जाएगा। डोंट फॉरगेट टू टेक योर अम्ब्रेला, इट इज़ रेनिंग, ठीक है। आई हेट लिविंग इन मरी बिकॉज इट रेन्स, इट रेन्स, रेन के बाद ऐसा आ जाएगा, ठीक है, इट रेन्स अ लॉट देयर, ठीक है। आई एम सॉरी आई कांट हियर व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज एवरीबॉडी इज टॉकिंग, इज टॉकिंग सो लाउडली, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे बाकी दो सेंटेंसेस जो हैं वो यू हैव टू सॉल्व देम। माई टीचर राइट इज़ राइटिंग, डू यू वांट टू कम ओवर फॉर डिनर टुनाइट? ओह सॉरी आई कांट, आई एम गोइंग टू म्यूज़िक कॉन्सर्ट विद सम फ्रेंड्स। अब है आपके पास सेक्शन नंबर सी, इसका वो है गेसिंग द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स के। आपने जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो देर आर समटाइम्स के बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स होते हैं और आपको उनके मीनिंग्स समझ नहीं आ रहे होते। अब आप हर एक वर्ड का मीनिंग जो है वो डिक्शनरी से देखना शुरू कर दें तो होता ये है कि फिर आप है वो रीडिंग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बार बार यू आर ओपनिंग डिक्शनरी या फिर आप डिक्शनरी में टाइपिंग कर रहे हैं, गूगल पे देख रहे हैं मीनिंग्स, तो वो रीडिंग जो है वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करने के लिए बाज़ बात ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल हम करते हैं कि जिनसे हमें मीनिंग का अंदाज़ा हो जाता है और हम वो अंदाज़ा लगाकर आगे चल पड़ते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन में आपको जो है वो मीनिंग इन्फर करने का या फिर गेस करने का कुछ टेक्निक्स जो हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो द मीनिंग्स ऑफ many unknown words can be inferred or guessed from the context or the perspective of the passage. It is very important to learn how to guess the meanings of the unknown words when you read. If you do not, your reading will be slow and difficult. Let us do some exercises कि चंद exercises दी गई हैं that will help you learn to guess words meanings through the context, कि जिसमें context का इस्तेमाल यानी कि सियाक़ो सबाक़ का इस्तेमाल करते हुए आपको अल्फाज के मानी जो हैं वो गेस करने के बारे में कुछ आइडिया दिया जाएगा। The following is a newspaper report. The report contains number of words printed in italics which you might not know.
Read it carefully and see if you can guess the meanings of these words from context of the passage. के इटैलिक्स में जो वर्ड हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, और आप जो है वो गैस करने की कोशिश करें कि आप जो है वो इन मीनिंग्स, जो ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनका मीनिंग गैस कर सकते हैं या नहीं. अ पुलिस स्पोक्समैन, स्पोक्समैन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन. तो स्पीक का मतलब गुफ्तगू करने वाला, मैन का मतलब आदमी, के पुलिस का जो गुफ्तगू करने वाला शख्स यानी कि जो रिपोर्ट्स को या मीडिया को हैंडल करता है वो शख्स. टोल्ड रिपोर्टर्स दैट एन अनआइडेंटिफाइड, अन का मतलब हमें पता है कि नहीं, इसका मतलब होता है नो, नॉट. आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है शनाख्त करना. तो ऐसा शख्स कि जिसकी शनाख्त नहीं है. मैन हैड नाइफ्ड 6 foreigners in the bag here yesterday. नाइफ्ड, नाइफ का मतलब हमें पता है चाकू, और नाइफ का मतलब चाकू मारना. द विक्टिम्स वर ओनली स्लाइटली इंजर्ड, के विक्टिम जो थे वो स्लाइटली यानी कि मामूली से इंजर हुए, ज़ख्मी हुए. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेन क्लोथ पुलिस, extra uniformed and plain clothed police have been deployed in various residential areas and the tourist spots to track down the man. Eye witness, आई का मतलब आँखों, विटनेस का मतलब शाहिद, एनी शाहिद यानी कि आँखों देखा जिस बंदे ने हाल सुनाया. सेड दैट द असेलेंट, अब हमें पता है कि जनाब एक शख्स की बात हो रही है जिसने हमला किया है. तो कि आई विटनेस के जो मतलब गवाहान थे या यानी शाहिदीन थे. सेड उन्होंने कहा दैट दी अजेलेंट, दी का वर्ड आया तो अजेलेंट के हमला करने वाला, हमलावर, वाज इन हिज अर्ली 20s, हैड फेयर स्किन एंड शॉर्ट हेयर एंड वोर ग्लासेस. वन ऑफ द विक्टिम्स सेड ही डिड नॉट सी हिज अजेलेंट बट फेल्ट अ शार्प नाइफ थ्रस्ट इनटू हिज लेफ्ट साइड. तो यहाँ से अब हमें थ्रस्ट के वर्ड का अंदाज़ा हो सकता है कि शार्प नाइफ है, उसने देखा नहीं है लेकिन उसको लेफ़्ट साइड पे फील हुआ, तो मतलब कि उसने छुरा घुसा दिया. आई हेल्ड अ टैक्सी एंड वेंट टू द हॉस्पिटल, ही सेड. हेल का मतलब टू कॉल समथिंग. हियर इज़ लिस्ट ऑफ 15 वर्ड्स फ्रॉम द अबव न्यूज़पेपर रिपोर्ट इन द column 1 and also the list of dictionary definitions of these words. Can you match each word with correct definition? तो ये अब 15 वर्ड्स हैं, उनको आपने मैच करना है. मैंने मीनिंग बता दी है, लिहाजा वी डू नॉट नीड टू डू दिस एक्टिविटी. In the newspaper report, you have noticed how a noun, a knife, can also be used as a verb. कि noun को बतौर verb इस्तेमाल किया जा सकता है. Here are some more sentences. In each sentence there is one word written in bold. These words or verbs are driven from very frequently used nouns. Guess the meanings. The nurse wheeled the patient into the operating room. Wheel का मतलब क्या होता है? पहिया. Wheeled उससे verb बना है, तो इसका मतलब होगा कि पहियों के ऊपर यानी कि व्हील चेयर के ऊपर जो है वो बिठाकर खातून, या फिर वो जो बेड होता है हॉस्पिटल्स में जिसके नीचे व्हील लगे होते हैं उसके ऊपर लिटाकर जो नर्स थी, शी took the patient into the operating room. Children like these pills because they are coated with sugar. कोट का मतलब आपको पता है कि जो ऊपर पहनते हैं, पहनावा. कोटेड पूरा कोट करना, पहनावा करना टॉफ़ियों के ऊपर. इट इज़ वेरी स्टफ़ी इन हेयर, आई थिंक वी शुड एयर द रूम. अब एयर का मतलब हवा, तो रूम को हवादार बनाएं, खिड़कियां खोलें. ऑब्वियसली दे फर्स्ट कॉर्नर्ड द रैट एंड देन कॉट इट. कॉर्नर्ड यानी कि कोने में लगाना, ठीक है. एक उसको कोने में लगाया, उसके बाद उसको पकड़ लिया. ऐसे ही बाकी जो वर्ड्स हैं, यू शुड रीड देम. द पॉलिटिशियन वर्डेड हिज रिप्लाई वेरी केयरफुली. वर्ड का मतलब लफ्ज़, वर्डेड के उसने अल्फाज जो थे, लफाजी जो थी, उसको बहुत ही एहतियात से किया. आई कैन पिक्चर हिम एज अ फादर नाउ. पिक्चर के तस्वीर बनाना, माइंड में
मतलब है इसका इमेजिन करना, ठीक है। ऐसे ही लाइंड है, टू बोन है, चेयर्ड है, चॉप्ड है, ठीक है। तो यू नीड टू गेस द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके मीनिंग क्या होंगे। देन देयर इज एक्सरसाइज नंबर 23, थिंक ऑफ द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच कैन बी यूज्ड एज वर्ब्स as well as nouns. For each word you can think of write 2 sentences. He has a big head. He heads a large company. ठीक है। इसके बाद अगेन जो है वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट दी गई है। Then there is this exercise number 4 के appropriate words जो है लिस्ट से आप रिप्लेस करें। यहाँ पे मूव ऑन। अब जो है वो इंडिविजुअल वर्ड से हम आगे मूव कर चुके हैं लॉन्गर सेंटेंसेस की मीनिंग गेस करने के लिए। Here are 3 longer passages taken from the above account. Try and make sense as what the writer means when he expresses such sentiments. Then read the 3 more passages A, B and C that follow and match each paragraph with its original one. As the day of the departure loomed in front of me, my sentiments changed. तो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। The day I was to leave Dubai and board the plane for Karachi, I started to feel sad. ये ए जो है ये इसको आसान अल्फाज में सी में लिखा गया है, ठीक है। For the first time I felt like a stranger even though this was my home country. I was overcome by a loud buzzing of rickshaws and hordes of people clinging on to the back bumper of the bus and the bumpy road. ठीक है। For me ये A है। For me my native country appeared a bizarre place. I have never experienced such chaotic traffic and the crowds of the noise. और 3 जो है उसको हम obviously B के साथ मैच कर देंगे, ठीक है। Now there is next section. This section is ये जो है guessing the words of the meanings. इसको यहाँ पर इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया। नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी इंग्लिश 2 होगी उसमें इस पे बाकायदा एक पूरा चैप्टर है, उसमें बाकायदा से इसकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं और इसको अच्छी तरीके से समझाया गया है। यहाँ पर जो है एक ओवरव्यू दिया गया, एक आइडिया दिया गया है कि ये भी एक टेक्निक होती है कि हम डिक्शनरी को ओपन किए बगैर जो है वो मीनिंग जो होते हैं उनको गेस कर सकते हैं। तो जो रियल इसकी एप्लीकेशन है या रियल जो इसकी एग्जांपल्स हैं या जो इसकी टेक्निक्स हैं उनको इंग्लिश 2 से यानी कि सेकंड सेमेस्टर की जो इंग्लिश है उसके अंदर अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। नाउ वी आर मूविंग टू 4th सेक्शन ऑफ योर बुक, दैट इज सेक्शन डी, राइटिंग, एंड इट इज़ राइटिंग दी कनेक्टेड सेंटेंसेस की जुमलों को आपस में मिला कर लिखना। कि वी जॉइन सेंटेंसेस इन मैनी डिफरेंट वेज, सो वी यूज़ एंड बट हाउएवर के कंजंक्शंस जो हैं कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस को थोड़ा लॉन्गर बनाने के लिए, क्योंकि छोटे सेंटेंसेस जो होते हैं वो शॉर्टर सेंटेंसेस होते हैं और वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, ठीक है। सो जब हमने जुमलों को थोड़ा लंबा करना होता है, थोड़ी हमने पेचीदा गुफ्तगू करनी होती है, तो हम एंड का, बट का, इन वर्ड्स का, हाउएवर का, इस किस्म के वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं और इन अल्फाज का इस्तेमाल करने से हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो थोड़े से लंबे हो जाते हैं और हम थोड़ी अच्छी बातें, मुश्किल बातें जो हैं वो भी हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। A conjunction is a connecting word that connects parts of a sentence. के conjunction जो होती है ये एक जुमले को दूसरे जुमले से या जुमले के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिलाती है। कंजंक्शन की सिर्फ 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
अब ये जो कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से जहन में रखना है। उसकी रीज़न ये है कि आपको सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंस की समझ उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक आपको कंजंक्शंस की समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो कंजंक्शंस की दो टाइप्स होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी कंजंक्शन दो जो कि जुमले के दो इक्वल हिस्सों को, यानी कि ऐसे हिस्से कि जो कि हम वज़न हैं, जो कि वज़न में बराबर हैं, उनको आपस में मिलाती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुमले के दो ऐसे हिस्सों को आपस में मिलाती है जो कि हम वज़न नहीं होते, ठीक है। सो यू विल रीड देम इन डिटेल कि a coordinating conjunction join single words or they may join groups of words, but remember they always join similar elements. For example, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से मिलाने के लिए या वर्ब फ्रेज को वर्ब फ्रेज से मिलाने के लिए या फिर सेंटेंस को सेंटेंस से मिलाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है उनका इस्तेमाल होता है। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं उनकी लिस्ट है एंड, बट, और, येट, फॉर, नॉर और सो। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़ुमरे में आते हैं, ठीक है। आगे आपको हर एक कंजंक्शन की एग्जांपल्स दी गई हैं। ताहिर सेंट इन हिज एप्लीकेशन एंड वेटेड फॉर अ रिस्पॉन्स। अब सब्जेक्ट जो है वो जुमले का ताहिर है, सेंट इन हिज एप्लीकेशन ये इसकी वर्ब फ्रेज़ है, और वेटेड फॉर अ रिस्पॉन्स जो है ये भी वर्ब फ्रेज़ है, ठीक है। तो ये दो वर्ब फ्रेजेस को आपस में मिला रही है। यूज़ योर क्रेडिट कार्ड फ्रीक्वेंटली एंड यू विल सून फाइंड योर सेल्फ डीप इन डेट। अब ये एक सेंटेंस है, यूज़ योर क्रेडिट कार्ड फ्रीक्वेंटली। अगर इसके आगे फुल स्टॉप लगा लें तो ये जुमला कंप्लीट होता है। एंड यू विल सून फाइंड योर सेल्फ डीप इन डेट, अगर ये जुमला अलग से लिखें तो भी ये मीनिंग देता है, ठीक है। तो ये दो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए, जोड़ने के लिए एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आगे जो है ये दो सब्जेक्ट्स को या दो नाउन्स को आपस में जोड़ने के लिए कि लिलियक्स एंड वायलेट्स आर यूजुअली पर्पल। इसके बाद बट है, बट की ऐसे ही एग्जांपल्स दी गई हैं, और की एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है, कि ये जो है वो दो हम वज़न जुमले के जो हिस्से हैं उनको आपस में कैसे ज्वाइन करती हैं। उसके बाद है चीज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज समटाइम्स कॉल्ड अ डिपेंडेंट वर्ड और अ सबऑर्डिनेटर and it comes at the beginning of a subordinate or dependent clause. Notice some of the subordinating conjunctions given in the table below. कि नीचे टेबल में आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो दी गई हैं, कुछ एक उनकी लिस्ट है। आफ्टर, बिकॉज, ऑल्दो, इफ, बिफोर, सिंस, दो, अनलेस, व्हेन, नाउ, दैट, इवन, though, only, if, while, as, whereas, whether or not, since, in order, that, while, even, if, until, so, in case। ये जो सारे वर्ड्स की लिस्ट आपको दी गई है ये सब क्या हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ठीक है। रीड। अब एक इसकी जो है एग्जांपल ये है, या इसको समझने का तरीकाकार ये है कि जो सबऑर्डिनेटिंग हिस्सा है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस के तौर पे खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। कि जैसे ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी कि दो जुमलों को आपस में मिलाया गया है, अगर हम उन दोनों जुमलों को अलग अलग मतलब करके लिखें तो वो सेंटेंस मुकम्मल सेंस देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जुमले हैं जिनमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगती है, इसको एक अदद मुकम्मल जुमले के साथ लगाना पड़ता है, उसके बाद इनका मीनिंग वाज़े होता है, वरना इनका मीनिंग वाज़े नहीं होता। अब ये है कि आफ्टर वी फिनिश टेकिंग द टेस्ट। अगर आप ये जुमला अकेला लिखें, आफ्टर वी फिनिश टेकिंग द टेस्ट, अब हालांकि इसमें सब्जेक्ट भी है वी, फिनिश इसमें वर्ब भी है,
और इसका ऑब्जेक्ट भी है द टेस्ट। लेकिन ये जुमला मुकम्मल सेंस आफ्टर वी फिनिश टेकिंग द टेस्ट ये अपनी मुकम्मल सेंस नहीं देता। वी आर गोइंग आउट टू ईट, ये जुमला जो है ये मुकम्मल सेंस देता है। और जब तक इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात जो है वो समझ में नहीं आएगी। तो ऐसा जो कि इंडिपेंडेंट खड़ा नहीं हो सकता, इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है, या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मार्क करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे कि ये आफ्टर है, आगे सिंस को यूज़ किया गया है। सिंस वी हैव लिव्ड इन लाहौर, अब ये जुमला जो अगेन है, अगर इसको अकेला करते हैं तो ये कोई मीनिंग नहीं देता, इसको अगले हिस्से के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ये मुकम्मल मीनिंग देगा। सिंस वी हैव लिव्ड इन लाहौर वी हैव गॉन टू एवरी हिस्टोरिकल साइट, ठीक है। तो ये जो जुमला है इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, वी हैव गॉन टू एवरी हिस्टोरिकल साइट। और सिंस वी हैव लिव्ड इन लाहौर जो है इस हिस्से को हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। While I was waiting in line for the museum to open, I ate my lunch. अब while I was waiting in line for the museum to open, again independent जुमला कोई मीनिंग नहीं देगा। कंप्लीट करेंगे I ate my lunch के साथ, तो I ate my lunch जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये पहला है while से लेके open तक, इट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। Although the line was very long and the wait over 2 hours, the visit was worth it. Again, although से लेके hours तक जो है ये subordinate clause है, और the visit was worth it जो है ये independent clause है। और although की मदद से इन दोनों जुमलों को join किया गया है। Even if you have already bought your ticket, you will still need to wait in line. तो इवन इफ़ से लेके टिकट तक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और यू से लेके लाइन तक जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इवन इफ़ जो है ये इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है। आई लव गुलजीज वर्क बिकॉज ही यूजेस कलर्स सो ब्रिलियंटली। अब आई लव गुलजीज वर्क्स, यहाँ तक आप फुल स्टॉप लगा दें कि जुमला कंप्लीट है। बिकॉज ही यूजेस कलर सो ब्रिलियंटली अकेला लिखने कोई मीनिंग नहीं देता, इसका मीनिंग हासिल करने के लिए आपको पिछले हिस्से के साथ इसको मिलाना पड़ेगा। तो जब ये कनेक्ट होगा तो तब मुकम्मल अपना मीनिंग कन्वे करेगा। तो वी कैन से दैट द फर्स्ट पार्ट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज व्हाइल द सेकंड पार्ट फ्रॉम बिकॉज टू ब्रिलियंटली इज़ अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। नाउ यू हैव blanks to fill. Which conjunction fits best in the sentence? जुमले दिए गए हैं, आपने उनके अंदर conjunctions का यूज़ करना है। ये आपकी किताब का पेज नंबर क्या है जी, सॉरी there is no page number written here, but यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर ये 26 है। I am hungry डैश आई डोंट वांट टू ईट, यहाँ पे क्या आएगा, आई एम हंग्री सो आई डू नॉट वांट टू ईट। डू यू वांट पिज़्ज़ा, यहाँ पे आएगा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। आई वुड टेल यू, यहाँ पे अब आप देखें देन लगेगा, एंड लगेगा, अनलेस लगेगा, इफ़ लगेगा और लगेगा। तो मेरे हिसाब में यहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल, इफ़ का इस्तेमाल होगा। कम डैश गेट इट, कम एंड गेट इट। आओ, कम इज़ आल्सो वर्ब, गेट इट इज़ आल्सो वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, he ate although he was hungry, because he was hungry, when he was hungry, so he was hungry, या फिर but he was hungry। तो यहाँ पर आएगा he ate, उसने खाया, because भी लग सकता है, when भी लग सकता है।
तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं बिकॉज, यहाँ पर when का यूज़ भी हो सकता है. Next is exercise number 16 of the book. Here is another exercise which will also test your understanding about the conjunctions. Choose the correct conjunction from the 5 choices given after each sentence. You can come to the meeting dash you do not say anything and say quiet. तो आप गेस करेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, अपने मैसेज सेक्शन में लिखें. ठीक है. यू कैन कम टू द मीटिंग एंड डैश यू डोंट से एनीथिंग एंड स्टे क्वाइट. इसमें आएगा जी एज लॉन्ग एज आई एम नॉट लिविंग डैश आई गेट एन अपॉलॉजी फ्रॉम यू. तो इसमें जो है अब आप देखें क्या आएगा. सो दैट आएगा, एज लॉन्ग एज आएगा, वाइल आएगा, अनटिल आएगा, एज इफ आएगा. तो मेरे हिसाब में यहाँ पर अनटिल आना चाहिए. Now let us move to sentence number 3 and 4. Ali is very tall. Dash Ahmed is very short. So that, as long as, while, until, as if. तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे while, WHILE, while. You look dash, you have seen a ghost. If you look as if, यहाँ पर क्या आएगा, as आप ऐसे दिखते हैं कि जैसा कि आपने कोई भूत देख लिया. I refuse to pay anything. Dash you do the work properly. I refuse to pay anything until, उस वक्त तक you do the work properly. You look dash, you haven't eaten for a week. You look, यहाँ पर आना चाहिए as if जी. So as if का ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट पेज पर है. You look, ऐसा आप ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसा कि आपने एक हफ्ते से ना खाया हो. देन 7 है, इसमें अब आप बताएं क्या आएगा. I came early dash I could talk to you privately. I came early dash I could talk to you privately. नीचे ऑप्शन देखें और करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैसेज सेक्शन में कमेंट करें जी. यहाँ पर आएगा so that. So are you okay? You look dash you have a problem. यहाँ पर क्या आएगा, anybody in the message section. यहाँ पर आएगा as if. Dash each job is very interesting. It's very badly paid. यहाँ पे ही नहीं है, ये THE द होगा. ठीक है. और यहाँ पे हम लगाएंगे while. कि हालांकि नौकरी तो बहुत अच्छी है लेकिन इट इज़ badly paid, के वहाँ पे सैलरी जो है it is not as much. We will go to the mountains on Saturday dash it doesn't rain. तो यहाँ पर क्या आएगा as long as. ठीक है. Next we have exercise number 27. Here are 10 sentences about Imran Khan. Join all these sentences to make a short paragraph. Use the linking word or conjunction and
wherever you think it is needed to join two sentences to make it one. 10 sentences हैं जी इमरान खान के बारे में दिए गए हैं और इनको जो है वो आपने अरेंज करना है और जहाँ पर आप समझते हैं कि दो जुमलों को मिलाया जा सकता है एंड का इस्तेमाल करके वहाँ पर आपने उनको कनेक्ट करना है, ठीक है। दिस इज़ योर एक्टिविटी, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ पैराग्राफ. Now we are moving on to next section, that is listening. This is the last section of this unit, unit number 1, and this section is concerned with understanding the डायरेक्शंस के. अगर जब आपको कोई बंदा डायरेक्शंस यानी कि हदायत दे रहा हो तो उनको आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है या उनको आपने कैसे समझना है. जी, जब कभी भी ज़ाहिर है हमारी लाइफ में हमें जो है वो काफ़ी मकामात ऐसे फेस करने पड़ते हैं जब हम कहीं पे किसी जगह पे फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं. तो whenever we are involved in any such action, तो we need to take directions from people कि हमें लोगों से जो है वो हदायत लेनी पड़ती है, हमें लोगों से पूछना पड़ता है कि अब हम आगे क्या करें, अब हम कहाँ जाएं, मतलब कि ये चीज़ किस जानिब है, या फ़लाँ बिल्डिंग किस जानिब है, या फ़लाँ ऑफिस किस जानिब है, या हमें मतलब कौन कौन से स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा कोई भी काम करने में, ठीक है. तो डायरेक्शंस जो हैं वो लेना और डायरेक्शंस लोगों को मुहैया करना कि रास्ते में लोग हमें मिल जाते हैं जो कि हमसे पूछते हैं कि जनाब मस्जिद कहाँ पर है, ठीक है, या मार्केट कहाँ पे, या मार्केट में जो है वो हजाम की शॉप जो है वो मतलब कहाँ पे है, या फ़लाँ चीज़ कहाँ से मिलेगी. तो वी हैव टू गिव डायरेक्शंस टू द पीपल, हमें लोगों को जो है वो समझाना पड़ता है, ठीक है. तो इसके लिए यू शुड बी एबल टू गिव डायरेक्शंस टू द पीपल कि अगर कोई आपसे पूछता है कि जनाब आई नीड योर हेल्प, कैन यू डायरेक्ट मी टू द रोड टू सो एंड सो रोड, और कैन यू डायरेक्ट मी टू सो एंड सो शॉप. सो ऑल you have to do is you have to give them directions. So now there is an activity. Look at the map of Clifton area, Karachi. Mustafa lives in Karachi and Saud is a visitor to Karachi. Saud wants to go to the Agha's superstore and needs help. Mustafa is trying to help him by giving him the directions to reach the Agha's supermarket. Listen carefully as how Mustafa is giving directions, and as you listen, trace the route with a pencil and see if you can understand Mustafa's directions. Excuse me, Mustafa, can you tell me the way to Agha's superstore? Yes. Now let me see. What's the best way? Okay, at the moment we are at Sindh Rest House. Okay, first turn right. Okay, सबसे पहला स्टेप जो है डायरेक्शंस का जो हमें करना है वो है वी हैव टू टर्न राइट टूवर्ड्स कहकिशां रोड, देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न टूवर्ड्स ब्लॉक 7. एक राइट लेना है, राइट लेने के बाद जो फर्स्ट गली जो है राइट को मुड़ेगी टूवर्ड ब्लॉक 7, वहाँ पे जाना है. कीप मूविंग डाउन until you reach at T junction of उज़्मा आर्केड. टी चौक आएगा, ठीक है, उज़्मा आर्केड का. उसके बाद टेक द फर्स्ट राइट टर्न अगेन. टी चौक से आपने फर्स्ट राइट, सबसे पहला जो राइट को टर्न आएगा वहाँ पे दोबारा राइट टर्न लेना है. मूव अ बिट स्ट्रेट एंड जस्ट बिहाइंड उज़्मा आर्केड इज़ आगाज़ सुपर स्टोर. डिड यू अंडरस्टैंड? Well, yes, let me see if I can find it without much effort. ठीक है, तो अब ये नक्शा है, यहाँ से आपने समझने की कोशिश करनी है कि कहाँ पर हैं वो और कहाँ से उनको कहाँ मूव करना है, ठीक है. कहकिशां है, ब्लॉक 7 है, और ब्लॉक 7 से फिर जो है वो आगे फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, ठीक है. तो you have to follow the directions on the map. There are many different ways for asking for directions. These are कि अगर आपने किसी से कोई डायरेक्शन पूछनी है तो उसके मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं. Can you
कैन यू गाइड मी, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू, आई वॉन्डर इफ़ यू कुड हेल्प मी, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस हैं कि जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं हम डायरेक्शंस पूछने के लिए। और वाइल वी आर गिविंग डायरेक्शंस, तो ये चंद एक्सप्रेशन हैं जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं लोगों को डायरेक्शंस मुहैया करने में। गो अप या फिर गो डाउन, कि ऊपर चढ़ना है या नीचे जाना है, क्योंकि बाज़ जगह पे ऊंचाई आती है, बाज़ जगह पे उतराई होती है। तो ऊंचाई के लिए गो अप और उतराई के लिए गो डाउन। गो अक्रॉस द स्ट्रीट, कि गली जो है वो आपने पार करनी है सीधी, तो उसका मतलब है इस एक्सप्रेशन का कि आपने गली सीधी पार करनी है। गो अक्रॉस द स्ट्रीट के गली से आगे निकल जाएं। टर्न राइट, टर्न लेफ़्ट, दाएं मुड़ें, बाएं मुड़ें। गो अलॉन्ग द स्ट्रीट, के गली के साथ साथ जो है वो आप चलते जाएं। इट विल टेक यू अबाउट डैश मिनट्स टू गेट देयर, कि आपको वहाँ पर पहुँचने में इतना वक्त लगेगा। इट्स ओनली अ डैश मिनट्स वॉक, कि यहाँ से सिर्फ इतने मिनट की वॉक है, इतने मिनट के बाद आप जो है वो अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। Saud is at loss. He wants to visit yet another place but does not know the way, and Mustafa is once again helping. In this exercise you will just follow Mustafa's directions, and if you follow his instructions or directions correctly, then you will reach the place Saud is looking for. So now switch on your cassette recorder and listen to the recorded text 5. Listen to Mustafa's direction and trace the route and find the place. Mustafa, can you also help me to find the way to? उसने किसी जगह पे जाना है। Yes, sure, you are now near 70 Clifton, are you? कि अब आप 70 Clifton पे मौजूद हैं। Yes, okay. Now come on the main road and go upwards on the Clifton roads. Keep going straight for at least half a kilometer until you reach the roundabout of Two Talwar. Are you with me? Are you with me का मतलब है कि क्या आपको मेरी समझ आ रही है? Of course I am. Tell me which road I should take. Shall I go straight toward Khayabane Iqbal? No. From Two Talwar go right a little. ये थोड़ा सा जो है टू तलवार से आपने क्या करना है? A little you have to go right. Then take the first left turn. उसके बाद पहला लेफ़्ट टर्न आपने लेना है। A little more straight and you will see Mid East Medical Center, ठीक है। तो ये मिड ईस्ट मेडिकल सेंटर है, ये दो तलवार है, और ये 70 क्लिफ्टन है, ठीक है। यहाँ 70 क्लिफ्टन से चलते चलते हम सीधा स्ट्रेट जाएंगे। ये आ गया दो तलवार। दो तलवार से आप थोड़ा सा राइट होंगे ये, और उसके बाद फिर दोबारा आप जो है वो सीधा इस रोड पे चले जाएंगे, खयाबाने इकबाल पे। तो ये आपका मिड ईस्ट मेडिकल सेंटर जो है, इट इज़ राइट हेयर। Okay, so that is the end of unit number 1. यूनिट नंबर 1 में हमने जो है वो आखिरी जो सेक्शन था हमारा वो था डायरेक्शंस का, कि हाउ टू टेक डायरेक्शंस, के लोगों से हमने डायरेक्शंस जो हैं वो कैसे रिसीव करनी है और उनको अंडरस्टैंड कैसे करना है। अब हम मूव करेंगे टूवर्ड यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जो है बेटा, इसको भी उसी पैटर्न पे 5 सेक्शंस के अंदर कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। इसका भी जो फर्स्ट सेक्शन है वो फंक्शन पे मुश्तमिल है, यानी कि लैंग्वेज का फंक्शन, लैंग्वेज का इस्तेमाल, और जो फंक्शन है यहाँ पर वो है सीकिंग कंफर्मेशन, के लोगों से किसी बात को कंफर्म करना, उनसे ये बात जानना कि जो बात आप कर रहे हैं वो बात ठीक है, उसको वेरीफाई करना कि हाँ जी यहाँ से राइट ही जाना है या लेफ़्ट ही जाना है, ठीक है।
तो उस चीज़ को दोबारा से कंफर्म करना. Sometimes we want to know the truth behind what we hear or read. Sometimes we need to confirm or verify the doubts and thoughts in our minds, and so we ask for the confirmation. We need to know exactly what happened, who said something, and what is being planned, and for all these matters, we need to seek confirmation. In this unit, you will learn some of the ways in which we can ask for confirmation. कि कुछ ऐसे methods आप सीखेंगे कि जिनसे आपको पता चलेगा कि हम जो है वो confirmation लोगों से कैसे लेते हैं. Here is a situation कि आपको एक situation दी जा रही है. A high-ranking government officer has been shot dead outside his house in Islamabad. A newspaper report is asking the superintendent police some questions about the incident. Listen to the conversation and notice how the reporter is asking questions to seek confirmation. News reporter: SP Sahib, when exactly was Mr. Butt shot? Superintendent Police: at 8:30 this morning. के पहली कंफर्मेशन कि जनाब आप एग्जैक्ट वक्त बताएं. ये जो एग्जैक्ट का वर्ड है ना, ठीक है, ये हमें बता रहा है कि जनाब यहाँ से कंफर्मेशन पूछी जा रही है कि आप सही वक्त बताएं. वेयर डिड इट हैपन. दूसरा क्वेश्चन कि ये चीज़ वाकया कहाँ पर पेश है. आउटसाइड हिज हाउस. ही वॉज लिविंग फॉर वर्क. ही टर्न राउंड टू से गुड बाय टू हिज वाइफ एंड एट दैट मोमेंट ही वॉज फायर्ड अपॉन. उसके बाद कंफर्मेशन है कि व्हाट वेपन वाज यूज्ड, कि किस हथियार का इस्तेमाल किया गया. एन AK-47 का इस्तेमाल किया गया. वाज देयर एनीवन एल्स इन द स्ट्रीट एट द टाइम. येस देयर वर अ फ्यू विटनेसेस. सो हैव यू डिस्क्रिप्शन. येस, अ फेयरली गुड डिस्क्रिप्शन. SP साहब, इट्स अनबिलीवेबल. हाउ कैन अ मैन शूट समवन इन अ ब्रॉड डे लाइट in the center of Islamabad and get away with it? Well, these criminals can do anything. The man who was wearing a grey shalwar kameez and a black shawl walking past the minister's house took the gun from under his shawl, fired at the minister indiscriminately as soon as he came out of his house, and simply walked away. He didn't run. Those who saw the incident ran to help the minister. Nobody followed the man because he had a gun. Now, अब हालांकि इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि वो सिंपली वॉकड अवे. नाउ ही इज सीकिंग कंफर्मेशन कि आप दोबारा बताएंगे कि ही जस्ट वॉकड अवे. SP साहब कहते हैं येस आई बिलीव सो. इनक्रेडिबल. येस इट इज़, isn't it? Do you suspect anyone or the motive behind the murder? At the moment we are unable to make any conclusions. Here are some expressions from the dialogue. अब dialogue के अंदर से कुछ expressions आपको दिए जा रहे हैं जो कि confirmation के लिए इस्तेमाल हुए. So you have a description. ये confirmation के लिए इस्तेमाल हुआ है. He just walked away, ये surprise के लिए इस्तेमाल हुआ. The reporter did not say or use any question form. Do you have a description? Have you got any description? He did not use the question form. Instead, he used the statement form because he actually knew the answer. के जवाब तो उसको इल्म था और उसको कंफर्मेशन चाहिए थी, तो उसने स्टेटमेंट को रिपीट किया, ना कि उसने क्वेश्चन किया. जब आप क्वेश्चन करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपको आंसर नहीं पता. कंफर्मेशन ये होती है कि सिंपली आप जो है वो जुमला रिपीट करते हैं सवालिया अंदाज में और अगला बंदा जो है वो आपको आपके आंसर को येस और नो में रिप्लाई करेगा. ठीक है. दिस ब्रिंग्स अस टू स्टडी सम मोर क्वेश्चन टाइप्स. वी हैव फिनिश्ड 8 types of questions in unit 1. We will continue with type 9 questions. Question type 9. The reporter asks, so you have a description? He is actually asking. So do you have a description? He was actually confirming. What has he heard? And when the SP told him that the murderer walked away, the reporter expressed surprise and reconfirmation the information and said,
he just walked away. He's actually saying, did he just walk away? Listen to the dialogue again and compare the tone of the voice, stress and intonation of the two questions to understand this point. कि जो आपका बात करने का लहजा है उस लहजे से रिफ्लेक्ट होगा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कि आप जो है वो कंफर्मेशन सीख कर रहे हैं. Here are 3 short dialogues. Notice the questions being asked. They are actually not real questions but rather confirmation seeking questions. Rewrite these questions into real questions using the appropriate question form. And your identity card please, I have lost it. Can I have your ID card please? Or can you give me your ID card please? Or can you show me your ID card please? Your name is जमील कुरैशी. ठीक है, ये अब आईडी कार्ड मिल गया. आईडी कार्ड मिलने के बाद जो है क्वेश्चन की कंफर्मेशन की जा रही है. योर नेम इज़ जमील कुरैशी. तो अगर हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखना चाहें तो होगा इज़ योर नेम जमील कुरैशी? यू लिव नियर निटी ब्रिज? डू यू लिव नियर निटी ब्रिज? You are the managing director of Allied Fittings Limited. Are you the managing director of Allied Fittings Limited? ठीक है, तो ऐसे हम जो है क्वेश्चंस करते हैं. ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये मतलब कंफर्मेशन के लिए होती हैं, ये इंफॉर्मेशन के लिए नहीं होती. जब हम पूछते हैं कि आर यू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अलाइड फिटिंग्स, तो इसका मतलब है कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, और अगर हम पूछेंगे यू आर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अलाइड फिटिंग्स लिमिटेड, तो अगला बंदा कहता है येस आई एम, तो ये कंफर्मेशन सीकिंग है. ठीक है, दूसरा डायलॉग है यू वर्कड इन सऊदी अरेबिया फॉर 3 years. अगेन हैव यू वर्कड इन सऊदी अरेबिया फॉर 3 years, ये मतलब क्वेश्चन होगा. और यू वर्कड इन सऊदी अरेबिया फॉर 3 years, ये कंफर्मेशन सीकिंग मेथड है. ठीक है, you were working for the construction company Al Jazeera. Yes, you were trained as an accountant, but I see here that you worked as personal manager in Saudi Arabia. You played your first test in 2004. That's right. It was against England in Karachi, and you scored a century in your first test in England. Yes, I had a lucky start. So if you wish to convert them into questions, तो आप बताएंगे कि did you play your first test in 2004? Did you score a century in your first test innings? तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करने के बाद जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं या जो आपकी कन्फर्मेशन सीकिंग है वो इट विल बी चेंज इनटू क्वेश्चंस. उसके दोबारा एग्जांपल्स हैं, इनको आप रीडिंग दे लें. फिर एक्सरसाइज नंबर 2 पे आ जाएं. What kind of expressions or questions will you use to ask for confirmation about the following information? God, I weighed 85 kilos. So अगर तो हमने क्वेश्चन पूछना है तो हम पूछेंगे कि हाउ मच डू यू वेट, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पे कंफर्मेशन है. और इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से मौजूद है कि बंदा कह रहा है गॉड आई वेट 85 किलोज. सो जब आप कंफर्मेशन मतलब इफ यू विश टू सीक द कंफर्मेशन, सो यू विल सिंपली आस्क सो यू वेट 85 किलोज. ऐसे आप जो है वो रिपीट करेंगे. इसी पैटर्न पे आप जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं आप इनको अटेम्प्ट करें. आई वर्क इन अ थिएटर कंपनी, एक्चुअली आई एम एन एक्टर. सो जब हम कंफर्मेशन सीकिंग में जाएंगे तो हम कहेंगे सो यू आर एन एक्टर. सिंपली हम ये बात करेंगे आई एम अ पोइट, आई राइट पोइट्री इन इंग्लिश. सो यू राइट पोइट्री इन इंग्लिश, हाँ.
I'm leaving my job and going back to Quetta for good. You're leaving your job and going back to Quetta for good? इसके आगे क्वेश्चन मार्क आएगा तो ये आपकी कंफर्मेशन सीकिंग हो जाएगा। और अगर आप शुरू में आर लगा देंगे कि आर यू लिविंग योर जॉब एंड गोइंग बैक टू कोयटा फॉर गुड, तो ये फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नाउ देयर इज थर्ड एक्सरसाइज। Suppose one gives you the following information. You are surprised. How will you express your surprise and ask for confirmation? It will be useful for you if you do this exercise with a friend. तो ये एक्सरसाइज है अब इसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे हमने ऊपर एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हैं। ये तीन जो है वो 1 2 3 इनको आप जो है वो कंफर्मेशन सीकिंग स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करें। कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे आंसर जो है वो सेंड करें, जो समझता है बच्चा कि उसको आता है। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल बी बैक इन अ व्हाइल इन अ jiffy. Okay, then we have question type 10. Read the following examples. She is a beautiful girl, isn't she? इनको हम कहते हैं टैग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये भी कंफर्मेशन के लिए, एग्रीमेंट के लिए, कंफर्मेशन के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, हम एक पहले स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट जो होती है पॉजिटिव होती है या नेगेटिव भी हो सकती है, और उसके आगे जो है वो हेल्पिंग वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब जो कि सेंटेंस के अंदर यूज़ हुआ होता है। अगर यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब इज़ है, जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो क्वेश्चन में हमने पूछना है इज़ नॉट शी। अगर यहाँ पे होता शी इज़ नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे होता इज़ शी। ठीक है, तो उसका अपोजिट होता है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो वहाँ पे पॉजिटिव में पूछेंगे, अगर इधर पॉजिटिव है तो वहाँ पे हम नेगेटिव में पूछेंगे। और उसका जब आंसर आपको मिलता है कि येस शी इज़, तो इट मीन्स दैट ये आपकी स्टेटमेंट की कंफर्मेशन है। ठीक है, इट इज़ सच अ प्लेजेंट वेदर इजंट इट? यस इट इज़। These questions are called tag questions. We often use tag questions to seek agreement or confirmation. For example, I might say, it's a lovely weather, isn't it? I expect the person I'm talking to agree with me and say, yes, it is. Or if I say, it wasn't a good film, was it? I expect the answer, no, it wasn't. So, अगेन वो बात जो कि मैंने ऊपर की आपको समझाने के लिए कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होती है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होता है। जैसे यहाँ पे दो मतलब कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं कि इट इज़ अ लवली डे, तो आगे टैग क्वेश्चन जो लगाया गया है कॉमा लगा के वो नेगेटिव में है कि इज़ंट इट। इज़ के साथ ये जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके साथ आप नॉट लगाएंगे। नेगेटिव स्टेटमेंट देन वी आर के स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है कि इट वाजंट अ गुड फिल्म, तो टैग जो उसके आगे लगाया गया है वो पॉजिटिव है कि वाज इट। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे जितनी भी टैग क्वेश्चंस होते हैं इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं टू सीक कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पर्सन। ठीक है, नाउ वी हैव एन एक्सरसाइज के जिसको हमने कंप्लीट करना है। ताहिर इज़ एन अकाउंटेंट। अब वहाँ पे चूँकि पॉजिटिव है तो हम इसको नेगेटिव में इज़ंट ही लगा के हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इज़ंट ही वाला जो ऑप्शन है
ताहिर चूँकि बॉय है तो नीचे ऑप्शन जो है वो शी से दिए गए हैं। शायद राइटर जो है वो ताहिरा लिखना चाह रहे थे और लेखन उन्होंने ताहिर दिया है। तो बहरहाल ये जो ऑप्शन है ऑप्शन सी वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें तो ये है आई एम अ गुड वर्कर, कि मैं एक अच्छा वर्कर हूँ। तो इसमें आएगा एम नॉट आई, क्योंकि स्टेटमेंट जो है यहाँ पे एम के साथ नॉट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव में है। ठीक है, आरिफा इज़ अ ग्रैंड मदर, अगेन स्टेटमेंट पॉजिटिव में है। ठीक है, तो इज़न्ट शी होगा। कमरान इज़ अ डॉक्टर, तो इज़ नॉट ही। ये इंतहाई आसान है। ठीक है, पांचवा भी मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। जवाद एंड अली आर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे चूँकि पॉजिटिव है, आर के साथ नॉट नहीं लगा हुआ, तो हम इसको कहेंगे आरंट दे। ठीक है, ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। बाकी 6, 7 और 8 जो है वो आप सॉल्व करें। आई एम हेयर, इसके आगे क्या लगेगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जी, एम नॉट आई, एमंट आई, ये लगेगा। ठीक है, यू एंड आई आर बिजी राइट नाउ, अगेन पॉजिटिव है, तो आर एंड वी करेक्ट होगा। आठवां, इट्स विंडी टुडे, तो जब इसकी कंफर्मेशन होगी, क्योंकि इट इज़ है तो इज़न्ट इट हम पूछेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये चीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। नाउ देयर इज एक्सरसाइज नंबर 5। complete the following statements adding an appropriate tag questions. Notice carefully if the statement is in positive or negative. ठीक है, he didn't steal the money, तो स्टेटमेंट चूँकि नेगेटिव में है, didn't लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे did he, टैग क्वेश्चन बन जाएगा और ये हमारा टैग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। he failed the exams, तो स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे डिडंट ही। ठीक है, टेंस पास्ट है, तो ही वॉन्ट कम टू लिव हेयर, तो इसका होगा विल ही के क्या वो आएगा। ठीक है, देन देयर इज नेक्स्ट, यू हैव स्टार्टेड योर न्यू जॉब, तो we will solve it like haven't you, you don't live here, do you। okay, अगर यहाँ पे जो है वो नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव होगा, और अगर इधर पॉजिटिव है तो वहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, so we have solved almost all the exercises related to these tag questions. I hope you would have understood about this. Now we are going to move into the next section of this unit, that is structure. Structure means grammar. ठीक है, and in grammar we will be going through the present perfect tense in this unit. In this unit we are going to study present perfect tense. Before we learn the rules, let us listen to a dialogue between Mr. and Mrs. Ilahi Baksh, who are about to go on a holiday. They are standing outside their front door and talking to each other. Listen to their conversation. Mr. Ilahi Baksh, have you switched off the gas? Mrs. Ilahi Baksh, yes, I have switched off the gas and I have switched off all the lights. I have unplugged everything in the kitchen. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस जो कि रिसेंटली, अभी ही, बिल्कुल रिसेंटली
जो है वो कंप्लीट हुआ हो। इसमें हैज़ का और हैव का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके साथ जो वर्ब होता है, वर्ब में हम ईडी का इजाफा करते हैं। इट इज़ ईजी। हैज़ और हैव की जिन वर्ड्स के साथ शी के साथ जैसे हैज़ लगता है, ही के साथ हैज़ लगता है, इट के साथ हैज़ लगेगा, बाकी आई वी यू जो है उनके साथ हैव लगेगा, ठीक है। और उसके साथ जो वर्ब होगा, वर्ब में हम ईडी का इजाफा करेंगे। तो मिसेस इलाई बख्श कहती हैं कि आई हैव स्विच्ड ऑफ द गैस, आई हैव स्विच्ड ऑफ ऑल द लाइट्स, एंड आई हैव, ये जो वी ई है ये हैव है, शॉर्ट फॉर्म है। आई हैव अनप्लग्ड एवरीथिंग इन द किचन। मिस्टर इलाही बख्श, व्हाट अबाउट द विंडोज? मिसेस इलाही बख्श, आई हैव शट and locked all the windows. I have left a spare key with Mrs. Green next door. She will check the house every day. Such a nice woman. Her husband has lost his job, do you know? Now let us see. Have I forgotten anything? Again, have कि क्या मैं कुछ भूल तो नहीं गया। एक ऐसा एक्शन जो कि रिसेंटली पास्ट में उनके घर से निकलते, अब वो घर के दरवाजे पे हैं, और जब वो घर से निकले थे तो उस वक्त कंप्लीट हुआ है। आई हैव पुट द सूट केसेज, आई हैव पुट, अगेन ठीक है, द सूट केसेज इन द कार, कम ऑन लेट्स गो, आई होप आई हैवंट फॉरगॉटन एनीथिंग। अगेन हैव नॉट फॉरगॉटन जो है वो सिंपल जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसकी निशानदेही कर रहा है। मिस्टर राइबक, स्टॉप वरिंग नाउ। Then there is exercise number 6. Imagine that you are Mrs. Ilahi Baksh. Mr. Baksh asks you whether you have done the following things. Answer his questions. Have you switched off the gas? Yes, I have switched off the gas. Now we have to solve this exercise. Have you switched off the lights? So you will say yes, I have switched off the lights. Then there is a second question. Have you unplugged everything in the kitchen? You will say yes, I have unplugged, आगे have everything in the kitchen, blah blah blah, ठीक है। Have you closed the window? So your answer will be yes, I have closed, आगे जो है वो the windows आप लिख देंगे, blah blah blah। Have you locked the door? Your answer will be yes, I have locked। have लगाया और have के बाद आपने lock के साथ जो कि वर्ब है ed का इजाफा कर दिया। अब इसमें आपने ये देखना है कि बाज़ वर्ब्स जो होते हैं वो irregular verbs होते हैं, उनकी जो सेकंड फॉर्म है वर्ब की उसमें ed का इजाफा जो है वो उनके साथ नहीं होता, ठीक है। तो हैव यू गिवन, अब ये जैसे गिवन आ गया, ठीक है, यहाँ पे ed नहीं बल्कि en का इजाफा हो रहा है, गिव के साथ ना n का इजाफा हो रहा है। हैव यू गिवन एनीवन अ स्पेयर की? तो यू से यस, आई हैव गिवन अ स्पेयर की टू मिसेस ABC, ठीक है। Have you forgotten anything? Then what will you answer? No, I haven't forgotten anything, ठीक है। तो अगेन ये जो इरेगुलर वर्ब है तो इसमें ed का नहीं बल्कि en का इजाफा हो रहा है, ठीक है। Here is a brief overview of the form and function of the present perfect tense. The present perfect tense is used when the time period has not finished, कि वक्त जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो उसी वक्त के बिल्कुल इख्तिताम पे है। I have seen 3 movies this week, कि वक्त अभी जारी है, जिस वक्त के बारे में बात हो रही है
है। अब यहाँ पे वी की बात हो रही है, वी कभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। आई हैव सीन 3 मूवीज़ दिस वीक। तो इस किस्म की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो इसका यूज़ है वो ये है, द प्रेजेंट परफेक्ट इज़ ऑफ्टन यूज व्हेन द टाइम इज़ नॉट मैंशन, जब वक्त जो है वो मेंशन नहीं किया जाता कि जुनेद हैज़ फेल्ड हिज एग्ज़ाम अगेन। लेकिन अब हमें वक्त का नहीं पता कि उसने कब फेल किया, ठीक है, लेकिन ही हैज़ फेल्ड द एग्ज़ाम। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट इज़ ऑफ्टन यूज व्हेन द टाइम इज़ रीसेंट। इसका इस्तेमाल उस वक्त होता है जब टाइम रीसेंट यानी कि अभी अभी। मारिया हैज़ जस्ट अराइव्ड, अब ये हैज़ जस्ट अराइव्ड जो है ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट का क्लू दे रहे हैं, ठीक है। द प्रेजेंट परफेक्ट इज़ आल्सो यूज्ड विद फॉर एंड सिंस, इसका सिंस और फॉर के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है और उसको जो है वो हम ये भी एक मखसूस वक्त या एक मखसूस मतलब दौरानिए के लिए उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है। दे हैव लिव्ड हेयर सिंस 1985, ठीक है, दे हैव लिव्ड हेयर फॉर 20 ईयर्स। जब एक मखसूस टाइम होता है तो उसके साथ हम जो है सिंस लगाते हैं। जब एक वक्त का दौरानिया जो है उसको बयान करना हो तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। The present perfect tense is formed with the auxiliary verb followed by the past participle, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो इसमें हैज़ और हैव जो है वो इसमें लगता है, ठीक है, और वर्ब की जो है इसमें थर्ड फॉर्म जो है वो उसमें यूज़ होती है, ठीक है, जैसे गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो आई हैव गॉन टू, ही हैज़ गॉन टू, ही हैज़ गॉन, दे हैव ईटन देयर डिनर, ठीक है। हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब है, गॉन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दे हैव ईटन, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है और ईटन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई हैव डन माई होमवर्क, आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैव लगता है। डन जो है ये डू की, डू डिड डन तीसरी फॉर्म है। आई हैवंट डन माई होमवर्क नेगेटिव में क्वेश्चन में आ गया कि हैव नॉट लग जाएगा और उसके साथ वर्ब की वही थर्ड फॉर्म लग जाएगी। क्वेश्चन अगर पूछना है तो हैव यू डन योर होमवर्क, कि क्या तुमने अपना काम किया है। तो इस पैटर्न पे आप जो है यू फॉर्म योर present perfect tense. Nahid is a personal secretary working for Lakhani Group of Industries in Karachi. Every morning before Mr. Lakhani comes to the office, she checks her boss's diary to make sure what are the official appointments, meetings and schedules. The things that Mr. Lakhani has done are marked with tick. Let us try to see how Miss Nahid is confirming or making statements about what her boss has done or not done. Follow the examples and then construct similar statements using present perfect tense, ठीक है। टेलीफोन दी पेशावर ऑफिसेस, ठीक है, ये उन्होंने कर लिया। एट 8:45 यू हैव टू टेलीफोन दी लाहौर अबाउट द न्यू कॉन्टैक्ट, ये उन्होंने काम नहीं किया। ही हैज़ नॉट डन दिस। एट 9 o'clock he was to see Mr. Afzal from Afzal and Sons Limited. 9:30 he was to check his accounts and he didn't do that. At 10 a.m. he had to interview the candidates for the new post in the accounts office. At 11:30 a.m. he had to visit the warehouse and check the warehouse inventory. At 12:30 Tesla New York about the delivery date for the machine tools. Then at 2 p.m. he had to discuss the advertisement with publicity departments. At 2:30 he had to prepare a report for the annual general meeting, ठीक है।
तो ये उनका शेड्यूल था, जो चीज़ें टिक हैं वो उन्होंने कर ली हैं, और जो चीज़ें टिक नहीं हैं, दीज थिंग्स हैव नॉट बीन डन. एग्जाम्पल्स: ही हैज़ टेलीफोन द पेशावर बट ही हैज़न टेलीफोन लाहौर येट. नाउ अब आपके पास क्वेश्चंस हैं, और रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द डायरी अगेन. कंस्ट्रक्ट एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस and 5 answers about Nahid's boss has done and what he has not done yet. Follow the examples given below. के नीचे जो मिसाल दी गई है. Has he telephoned the Peshawar office? Yes, he has. दूसरा क्वेश्चन होगा Has he telephoned the Lahore office? तो उसका आंसर होगा He hasn't telephoned the Lahore office yet. उसके बाद आप देखें तो 9 का शेड्यूल है. 9:30, 10, 11:30, 12:30, 2 PM और 2:30 PM. ठीक है, तो अब आपने जो है वो उन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए उन स्टेटमेंट्स पे पहले क्वेश्चन बनाना है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. ठीक है, फिर उसी को आपने जो है वो उसका आंसर करना है. ठीक है, पहले 2 काम उसके हो चुके थे. तीसरा काम था उसका दैट ही हैज़ टू सी मिस्टर अफजल फ्रॉम अफजल एंड सन्स लिमिटेड. तो आई विल डू दिस फॉर यू के हैज़ ही सीन मिस्टर अफजल फ्रॉम अफजल एंड सन्स लिमिटेड. तो इसका आंसर क्या होगा? Yes, he has seen Mr. अफजल. ठीक है, बाकी नेक्स्ट अब जो 2-4 एंट्रीज हैं वो आप अपनी चॉइस की कोई भी एंट्री सेलेक्ट करें और उनको जो है वो क्वेश्चंस के अंदर आप कन्वर्ट करें. इसी पैटर्न पे ये 2, 3, 4 और 5 जो है वो सॉल्व करें. 3 मिनट्स आप ले लें. ठीक है, 3 मिनट्स के बाद I'll be back with you. Meanwhile, you have to solve this exercise.
Okay, now let us move on to exercise number 9. Taimur is a young teenage boy who has just finished his final exams and has long holidays. He is at home and feels very bored. He does not know what to do. His mother suggests a number of things for him to do, but he is not interested. Let us read what his mother is suggesting to him and his answers to her suggestions. Why don't you read the interesting novel? I have already read it. Now suppose you are Taimur. What answers will you give to the following suggestions in the same way as in the examples? Use the present perfect tense. ठीक है? Why don't you ask Slim to come over? I have already asked him, but he doesn't want to. ठीक है? Why don't you switch on the computer and go on the internet? I have done it many times and I am so bored that I don't want to do it again. I have already done it. आप इसके आंसर में लिख सकते हैं. Now there is section C related to reading, synonyms and antonyms. Okay. So what are synonyms and antonyms? कि synonyms और antonyms होते क्या हैं? Synonyms का मतलब होता है कि जनाब ऐसे words that have similar meanings कि जिनके मिलते जुलते अल्फाज हैं. आसान अल्फाज में हम कहें तो उर्दू में हम जिनको कहते हैं मुतरादिफ, वो इंग्लिश में होते हैं सिनोनिम्स. और एंटोनिम्स जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनके आपस में अपोजिट मीनिंग्स होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स दैट कैरी द अपोजिट मीनिंग्स. इन इफ़ वी विश टू डिस्कस इट इन उर्दू देन वी कैन से कि ये मुतज़ाद अल्फाज होते हैं. ठीक है, दे हैव अपोजिट मीनिंग. सिनोनिम्स आपके सामने हैं, जैसे बेबी और इन्फेंट हो गया, स्टूडेंट और प्यूपल हो गया, प्रिटी एंड अट्रैक्टिव, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, सिक एंड इल, फनी एंड ह्यूमरस, डाइड एंड एक्सपायर्ड. ठीक है, ये जैसे यहाँ पे ह्यूज का वर्ड है और इनॉर्मस का वर्ड है, ये वर्ड्स आपस में क्या हैं? सिनोनिम्स हैं. ठीक है, तो जब कभी भी इफ़ यू विश टू नो अबाउट द सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, देयर इज़ अ स्पेशल डिक्शनरी फॉर इट. इट इज़ कॉल्ड थीसरस. ठीक है, THESARUS, थीसरस. आप उसका इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से जो है वो आपको जिस भी वर्ड के सिनोनिम्स चाहिए होते हैं या एंटोनिम्स चाहिए होते हैं तो यू फाइंड देम. ठीक है, नाउ देयर आर सम एंटोनिम्स. डेड एंड अलाइव. ठीक है, डेड का मतलब मुर्दा, अलाइव का मतलब जिंदा. नियर एंड फार. नियर का मतलब नज़दीक, फार का मतलब दूर. देन देयर इज़ वॉर एंड पीस, की जंग और अमन. ठीक है, अपोजिट चीज़ें हैं. ट्रीमेंडस एंड ऑफुल. ट्रीमेंडस एंड ऑफुल अगेन अपोजिट चीज़ें हैं. ठीक है, उसके बाद जो है वो हमें एंटोनिम्स दिखाए गए हैं. प्रिटी, अगली, हैप्पी, सैड, कोल्ड, हॉट, बिग, लिटिल, काइंड, मीन, स्टार्ट, फिनिश. ठीक है, लूज एंड फाइंड. टू लूज समथिंग और टू फाइंड समथिंग. ठीक है, तो हियर इज synonym exercise. In each sentence there is a word painted in bold followed by the three choices. Choose the closest to the meaning. Giant है तो giant का जो है वो मीनिंग क्या होगा? Obviously synonym इसका यूज होगा. Hate का वर्ड है तो इसका synonym जो है वो dislike है. ठीक है, इंसेक्ट्स है तो इंसेक्ट्स का मतलब जो है वो यहाँ पे बग्स हो जाएगा. ठीक है, फ्लेम जो है तो फ्लेम को हम फायर कह देंगे. ठीक है, देन देयर इज दिस एक्सरसाइज नंबर 11. इन एक्सरसाइज नंबर 11 यू हैव टू चूज़ द एंटोनिम्स. यहाँ पे डिसऑनेस्ट का वर्ड आया है तो डिसऑनेस्ट का एंटोनिम यानी कि मुतज़ाद जो है वो ट्रूथफुल होगा. ऑलवेज जो है कि हमेशा, तो इसका मुतज़ाद नेवर होगा. ठीक है, थॉटफुल जो है सोच समझ कर, तो इसका जो है वो मुतज़ाद जो है वो फूलिश होगा. अहमकाना. रूबी loves to sing. She has very weak voice. Weak का मतलब कमज़ोर है तो इसका एंटोनिम जो है वो हमारे पास
strong, ठीक है. Read this short paragraph. There are 4 words that are printed in bold. Then read the list of the words that are given in the box. Substitute each bold word in the paragraph with its closest synonym, ठीक है. क्यूरोसिटी का वर्ड बोल्ड है. क्यूरोसिटी जो होता है उसके लिए इनक्विजिटिवनेस जो है ये इसका नज़दीकी वर्ड है. उसके बाद एक्सपेरिमेंटिंग का वर्ड है, तो एक्सपेरिमेंटिंग का जो वर्ड है उसके लिए रिसर्चिंग का वर्ड जो है ये इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है. न्यूमरस का मतलब होता है तादाद में बहुत ज़्यादा, इसको मैनी रिप्लेस करेगा. और इंटेंसली के वर्ड को पैशनेटली का वर्ड जो है ये रिप्लेस करेगा, ठीक है. तो दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 12. रीड दिस शॉर्ट बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बैप्सी सिद्वा, a noted पाकिस्तानी राइटर who writes English. इसमें कुछ वर्ड जो हैं वो बोल्ड हैं, जैसे नॉन एग्जिस्टेंट का वर्ड है, न्यूमरस का वर्ड है, ट्रायम्फेंट का वर्ड है, ऑनर्ड का वर्ड है, ल्यूमिनस का वर्ड है, प्रिसाइज का वर्ड है, ठीक है. यू मस्ट हैव नोटिस्ड quite a few words that are given in bold above. Extract, read more carefully and you would notice that each bold word has at least 2 synonyms around it. Identify those similar or synonym. जी, ये जो बोल्ड वर्ड हैं इनके इर्द गिर्द इनके सिनोनिम्स जो हैं वो लिखे हुए हैं. In 1978, at a time when publishing English was practically non-existent in Pakistan, Sidwa self-published her first novel, The Crow Eaters. Since then, The Crow Eaters has been published and translated in numerous का already आ गया, ठीक है. Many, non-existent, inexistent कर लें आप, ठीक है. इनके सिनोनिम्स तो इनके न्यूमरस का ये यहाँ पे आ गया प्लेंटीफुल, ठीक है. ये इसका न्यूमरस का सिनोनिम है, ठीक है. टेक्स प्राइड इन कलेक्टिंग various novel. While The Pride was the first novel Sidwa wrote, it was the second to be published. Cracking India, Sidwa's third, was declared a New York Times notable book for 1991, for which she triumphed to win the. Triumph का मतलब भी होता है to win, ठीक है. तो ये साथ ही उसका मीनिंग आया है. सक्सेसफुल जो है ये भी इसका मीनिंग है ट्रायम्फ्ड का, ठीक है. विक्टोरियस जो है ये भी ट्रायम्फ्ड का सिनोनिम है, ठीक है. सिद्वा हेल्ड अ बंटिंग फेलोशिप एट रेडक्लिफ हार्वर्ड इन 1986 and was visiting scholar at the Rockefeller Foundation Center, Bellagio, Italy in 1991. She was honored with Tara Imtiaz, Pakistan's highest national tribute, awarded in 1991, and was also decorated. Decorated का word जो है ये इसका honored का synonym है, ठीक है. With Leela Wallace Reader's Digest Award in 1994. Sidwa has worked, ठीक है, इसमें नहीं है. Reviewers have praised Bapsi Sidwa's luminous prose that add brilliance and sparkle. Luminous के लिए sparkle का word होगा, ठीक है, shiny. Her style of writing is earthy but also both delicate and precise. Delicate और precise जो है ये आप एक दूसरे के synonym जो है वो हो सकते हैं. ठीक है, तो आवर टाइम इज़ अप फॉर टुडे, ठीक है. एक्सरसाइज नंबर 13 हमने देखी. उसके बाद सेक्शन नंबर डी है राइटिंग. सेक्शन डी राइटिंग जो है वो उसमें इनफॉर्मल लेटर्स आप लिखेंगे. इसको हम इंशाल्लाह कल से इसका आगाज़ करेंगे, ठीक है बेटा. टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़.